السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تؤسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے یہ 8واں سبق شروع کیا تھا، حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی. حروف قلقلہ تقریباً پڑھ لیا تھا، دوبارہ دہرا لیتے ہیں. حروف قلقلہ صرف 5 حروف کو ملا کر پڑھیں. وہ یہ ہیں: قطب، قطب یا قطب جدن، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ کی مشق، یعنی حروف قلقلہ کا معنی کیا؟ جنبش دینا، ہلانا آواز کو. یہ 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں. یہ ہے ہا کا نیچے لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ڈنڈا جو ہے نا ہا کا وہ نہیں لگا ہے، ہلا کر. وہ یہ ہے قطب جدن، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ کی مشق: قاف سے، اس سے اقو، 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 جی، اقو، اقو، اقو. خلقنا، تقویم، مقربۃ. وقف کریں گے تو خلقنا، تقویم، مقربہ، مقربہ. اس طرح قا، اطو، اطو، اطو. محیط، نطفة، نطفة. مطلع، مطلع. با، اس طرح حرف اب، اب، اب. جیسے کسب، کسب، کسب. وقب، عبدا، عبدا. یہاں پہ با میں قلقلہ ہے. کسب، وقب، عب، عبدا، عبدا. جیم سے اج، اج، اج. تجری، تجری. وقف کی حالت میں تجری ہوگی. اجر، اجر. زجرۃ، زجرہ. اور دال جیسے اد، اد، اد. عدن، قدحا. عدن سے عدن، قدحا، قدحا. يدعو، يدعو. تنبیہ: باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا چاہیے، صرف انہی میں جب ان پر کیا ہو؟ سکون ہو، جزم ہو، اس وقت. اچھا سمجھ آ گئی؟ استاد جی، اگر حروف قلقلہ مشدد ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے با ہے وتب، ایسے جی، پھر بھی قلقلہ ہوگا. وتب، مطلب پھر وقف، زیادہ جگہوں وقف، کے ساتھ پڑھیں وقف گے؟ کریں گے تو، وقف کریں گے تو پھر ہوگا. جی. ٹھیک ہے. اگر وقف نہیں کریں گے پھر قلقلہ نہیں ہوگا. اچھا. جی. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد. اب وقف کیا تو پھر ہے، پہلے ہم نے نہیں کیا اس کو، قلقلہ نہیں کیا احد ان پر. جی، تو یہ اس طرح ہے. صحیح، سمجھ آ گئی؟ صحیح. مثلا جی، وقب، وقب. اگر پڑھیں گے وقب، اگر پڑھ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ سکون کی حالت میں مت کریں گے. جی 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 جی. قلقلہ کریں گے کب؟ ٹھیک. ہلا کے پڑھیں گے جب سکون کی حالت میں.
इस पर सुकून हो। सुकून असली हो या गैर असली। असली से ठीक। मुराद ये है कि पहले से सुकून है, ठीक है ना जी। जी। और गैर जी। असली से मुराद क्या है, भाई हमने उस पर वक्फ किया है, अब सुकून बन जी। गया, तो ये जी। गैर असली है। दोनों हालतों में, असली हो या गैर असली, दोनों हालतों में जी। क्या होगा, कलकला होगा। कल तुला। समझ गए बात। जी सर जी। सबको बात समझ आ गई भाई। जी हाँ। अच्छा जी। हरूफ सफीरिया, हरूफ का मन हरूफ, और सफीरिया का माना क्या होता है, सीटी वाले हरूफ, सीटी वाले, ठीक है ना जी। यानी सफीर, सफीरिया एक चीज है, सीटी वाला, वो अरबी में सफीरिया बोलेंगे, अरबी का लफ्ज है। तीन हरफों में सीटी की तरह आवाज निकालें, वो हरूफ ये है, ज, ज, सीन, सौद, उनको हरूफ सफीरिया कहते हैं। ज, देखो ना सीटी आ रही है, ज, सीन, सौद, यानी ज और सीन को सीटी भी निकालेंगे बारीक पढ़ेंगे, सौद को सीटी भी निकालेंगे मोटा भी पढ़ेंगे। समझ गए बात। जी। हरूफ सफीरिया की मश्क, ज, अज, इज, उज। जी। जी, जैसे इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, समझ गए। जी। रिज, रिज्कुन, उजलिफत, ज़ईम, सीन से अस, इस, उस, दरसुन, दरसुन, दरस, असरा, युसरा, सौद से अस, इस, उस, वल असरी, वल असरी, वल असर, कसरुन, कसर, सिरातुन, सिरात। समझ आ गई भाई। जी। सबक नंबर उस्ताद जी, 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 और सूर्य नास के अंदर जरा सीटी निकाल के बताइएगा, सूर्य नास जो पढ़ते हैं हम। जी। वो आप लोगों ने सुनाना है, वो तो सबक दिया था आप लोगों को, नहीं दिया था। वो नहीं दिया नहीं था ना, एक दफा मैंने प्रैक्टिस कोशिश बड़ी की, सीटी निकल समझ ही नहीं आते कैसे सीटी निकाले। सबक तो दिया था मेरे ख्याल सूर्य में। नास में। हाँ भी दिया था कि नहीं दिया था, बोलते ही नहीं है। सूर्य फातिहा पढ़ाई थी उस्ताद जी। अच्छा, सूरत नास नहीं पढ़ी थी। नहीं। चलो, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। माशाल्लाह, जजाकल्लाह उस्ताद जी, समझ आ गई जजाकल्लाह। जी। जी समझ आ गई। सबक नंबर 9, मोटे पढ़े जाने वाले कुल हरूफ 10 हैं। कितना है भाई, मोटे पढ़े जाने वाले 10। हरूफ कुल 10 हैं। 10 है। 7 हरफों को हमेशा मोटा पढ़ते हैं, वो ये है खुस्सातिन क़िज़, इनको मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हरूफ हरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया। जी, यानी बुलंदी वाले, यानी क्या मतलब, जब ये अदा होते हैं तो जबान ऊपर उठती है, बुलंद होती है जुबान, इसलिए इनको मुस्तालिया कहते हैं। समझ गए ना, इनके अदा करने के वक्त क्या होती है जबान, तालू बुलंद की तरफ होती उठती है, है, हाँ ऊपर की बुलंद होती है। तरफ। जी।
تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستعلیہ، حروف مستعلیہ. مستعلیہ. جی. خص ضاغطن، کہ خص تیز. ضاغطن قو، یہ 7 حروف ہے. یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ 7 حروف موٹے. ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. موٹے پڑ جاتے اور 3 حرف جو باقی ہیں وہ کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں. اس لیے ان کو یہاں ان پہ نہیں لکھا. اوپر جو لکھا ہے موٹے حروف کل کیا ہے؟ 10 ہیں. لیکن یہاں پہ ان میں اس لیے نہیں لکھا کہ یہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی موٹے ہوتے ہیں. اور اس لیے ان میں شمار نہیں کیا ان کو، 3 کو. سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ ساری جی تفصیل آگے. آگے پڑھتے ہیں تفصیل. حروف مستعلیہ کی مشق: صاد، اصو، اسو، اسو، صابر، صبر، صامی، صامیتن. اب یہ دیکھو یہاں پہ صاد ہے، ٹھیک ہے نا جی. آگے کیا ہے؟ الف. صاد کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. اور ان 10 حروف میں ایک الف بھی ہے. جب الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف کو موٹا پڑھتے موٹا ہیں. پڑے. جب حرف کیا ہو؟ باریک ہو تو الف کو بھی باریک پڑھتے ہیں. باریک. سمجھ گئے نا؟ اس لیے جی صامیت اب آٹومیٹک یہ کیا ہو رہا ہے؟ الف بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے. اور اس کو بالکل ادا نہیں کر سکتا. اگر صاد کو ادا کرے موٹا اور الف کو باریک پڑھے، نہیں ہو سکتا کبھی بھی، مشکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. صامیتن، صامیت. اچھا، یہ سمجھ آ گئی الف کا؟ یعنی اب کتنا آپ کو جی سمجھ آ گئی؟ 8 حروف ہو گئے. اور ایک اللہ کا لام ہے. ایک کیا ہے؟ اللہ کا لام. حرف جلالہ. حرف جلالہ بھی بولتے ہیں، لفظ جلالہ بھی بولتے ہیں، اور اللہ کا لام. تو اس سے پہلے حرف پر جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، فی دین اللہ، فی دین اللہ. سمجھے نا؟ اگر اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پھر موٹا پڑھا جائے گا. جیسے جی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. دونوں کی مثال آ گئی اسی آیت میں، یعنی جی زبر کی پیش کی بھی. ٹھیک ہے نا جی. تیسرا، جی اسی طرح اذا جاء نصر الله والفتح قل هو الله احد نار الله عليه الله. سمجھ نا؟ یہ مثال جی اللہ کے نام کی. یہ کب موٹا پڑا جائے گا؟ جب اس سے پہلے زبر پیش ہو. اور الف کب موٹی پڑی جائے گی؟ جب اس سے پہلے موٹا حرف ہو. موٹا پڑے. جی. اور تیسرا کیا ہے؟ را. را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، وہ را موٹی پڑی موٹا جائے پڑا. گی. دو زبر ہو، دو پیش ہو، پھر موٹی پڑی جائے گی. اگر را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، زبر ہے، پھر بھی موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اگر را جی ساکن ہے، اس سے تو پہلے، شدت ہے. اس سے حرف پر پہلے سے بھی حرف یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، پھر اس کے ماقبل کے ماقبل کو دیکھیں گے. ماقبل کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے والا حرف. اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے والا حرف کو دیکھیں گے، ماقبل کے ماقبل کو. تو اگر اس پر جی زبر پیش ہے تو پھر اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. اگر زیر ہے تو مجھے باریک دوبارہ پڑھیں گے. بتائیے گا. دیکھو بھائی، را جو ہے، را کا ایک قاعدہ ہے. را جو ہے 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو متحرک ہوگی یا غیر متحرک ہوگی. سمجھ گئے نا؟ یا تو را جی متحرک جی ہوگی بالکل. یا غیر متحرک ہوگی. اگر متحرک ہے تو پھر را کے اوپر زبر پیش ہو تو موٹی پڑی جائے گی، زیر ہے تو باریک پڑی جائے گی. یہ مفہوم سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی جی زبر پیش والی موٹی پڑی جائے گی، زیر والی باریک پڑی جائے گی. یہ تو متحرک باریک. کی بات. اب ہے غیر متحرک. غیر متحرک کی 5 حالتیں ہیں. کتنا حالتیں ہیں بھائی؟ 5. غور پانچ کریں گے، پانچ آسان ہے، چلتے. آسان ہے بالکل. پورا قاعدہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، پورا قاعدہ.
यानी ये कितने हालतें हैं गैर मुतहर्रिक की? 5 साल। 5 हालत। नंबर एक, रा साकिन से पहले हर्फ पर जबर पेश हो। रा साकिन से पहले, जबर पेश हो। रा साकिन से पहले हर्फ पर, उससे पहले वाले हर्फ पर, ठीक है ना जी, क्या जबर पेश हो, तो इसको मोटा पढ़ा जाएगा। अगर माकबल, यानी ये माकबल हो गया ना इस हर्फ का, यानी रा का माकबल, अगर माकबल जी साहब जो है वो साकिन है, तो फिर माकबल के माकबल यानी उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, तीसरे हर्फ को देखेंगे। जी अगर उस पर जबर पेश है तो इस रा को मोटा पढ़ा जाएगा, अगर जेर है तो बारीक। मिसालें देता हूं आपको। जी। मिसाल के तौर पर, जैसे आरुस्साला, 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 आरु, आरुस्साला, सल। आरुस्साला। तो ये देखो रा साकिन है, उससे पहले हर्फ पर जबर है, हमजे पर। आरुस्साला, योरो सिलू, योरो सिलू है। तो जी ये आ गई मिसाल जबर जी पेश की। इसी तरीके से जी वल फजरो, वल फजरो, वल असरो। अब देखो वक्फ की हालत में ये रा साकिन हो गई, और उससे पहले जीम पर सुकून है, फिर उससे पहले जी हर्फ पर क्या है, फा पर जबर है। जबर तो वक्फ की हालत में इस रा को क्या पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। मोटा। मोटा। वल फजरो, वल असरो। अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर बारीक पढ़ेगा, उसकी हरकत अपनी आ जाएगी। वल असरी, ठीक है ना, वल फजरी, रा बारीक पढ़ेंगे। समझ आइए बात की नहीं आई? जी सर जी। जी आ गई। ये दो हालतें हो गई। कितना हालतें हो गई भी? दो। दो। रा साकिन की दो हालतें पढ़ ली हमने। कौन कौन सी? एक तो यह है कि माकबल पर जबर पेश हो। दूसरी यह है कि माकबल के माकबल पर जबर पेश हो। समझ जी आ गई बात की नहीं आई? ये जो वल फजरी पढ़ेंगे तो वो फिर मुतहरक में आ जाएगा। हो तो मुतहरक में आ जाएगा ना। जी जी। ठीक है। जब हम उस पर वक्फ करेंगे उस वक्त बात क्या है, समझे ना? जी जी। मोटा पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये दो हालत समझ आ गई हैं सबको? जी हाँ सर जी। जी। चलो जिसको समझ नहीं वो हाथ खड़ा करे जी। हाथ नीचे है जी। अच्छा जी। जी अब तीसरी हालत, कान खोल के बैठे ना जरा, ठीक है ना जी। तीसरी हालत ये जी है, जी जी। आपने वो बंद किए हुए है ना, मतलब ऊपर लगाया हुआ ना वो माइक्रोफोन, तो फिर कैसे मतलब है? है जी, फिर तो बंद हो गए कान, खुले तो ना हुए ना। 3 आदमी का खुला है, 2 का। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी तीसरा ये है कि रा साकिन से पहले, समझना बात को, रा साकिन से पहले जेर असली ना हो। रा साकिन से पहले जेर कसरा, असली ना हो। जेर असली ना असली हो। ना हो तो दूसरे कलमा में हो। अगर हो तो हो दूसरे कलमा में, पहले तो ये असली ना हो, और अगर है तो वो भी दूसरे कलमा में है, तो फिर भी दोनों हालतों में क्या करेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे। रा को क्या करेंगे भाई, पड़ेंगे। रा को मोटा पढ़ेंगे। जैसे एरो जे ई, एरो जे ई, ठीक है ना जी। ये इसका जो कसरा है वो असली नहीं है, मसलन यानी वसली है, हमजा वसली है ना ये इरजाई का। और यानी जो कतई नहीं है, जो हमेशा रहता नहीं है, चला जाता है, आ जाता है, जब उससे शुरू करे तो आ जाता है, अगर पीछे हर्फ मिला के पढ़े तो वो चला जाता है। तो ये असली ना हुआ, इसलिए इस रा को मोटा पढ़ेंगे। समझ गया ये बात? मिसाल दोबारा समझाइए। ये मिसाल दोबारा समझाइए इरजी वाली। और भाई इसका जो जेर है ना इरजई का, ये हमजा जी जी। वसली है, हमजा कतई नहीं है। हमजा कतई वो होता है जो गिरता नहीं है किसी हालत में। जैसे कद अफलहल मुमिनून, अफलह युफलिहु, बाब इफ़आल का जो हमजा होता है, 8 हरूफ हैं, 8 हमजे होते हैं जो कतई होते हैं।
मसलन उनमें से बाब इफ़आल का जो हमजा है, जैसे अफलह युफलिहु, अफलह, ये जो हमजा है कतई है, देखो ना, नहीं गिरा। कद अफलह पढ़ते हैं। अगर ये हमजा कतई ना हो तो हम क्या पढ़ते? कद अफलह पढ़ते। समझ गए सही। बात? जी। क्या पढ़ते फिर? जी। कद अफलह। कदफला। कद अफलह। वो दूसरी किरात में है, सैयदना वर्ष से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सैयदना हफ्स इस तरह नहीं पढ़ते। ठीक है ना जी? ये कतई कतई रहने देते हैं। तो कद अफलह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कद अफलह। कद तो अफलह। लेकिन इसमें उस तरह नहीं है। इरजई में या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजिई। अब पढ़ा है हमने हमजा? नहीं, अब नहीं। नहीं। तो किधर गया फिर? इसके बाद चले जाते हैं ना। चला जी, अब गिर गया। हाँ, गिर गया। अब उसी से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इरजई आ गया वापस। तो इसको क्या जी। बोलते हैं? ये हमजा वसली है। हमजा मुस्लिम। हमजा वसली। कतई जो होता है वो हमेशा रहता है। समझ गए ना? वो नहीं गिरता। जी। समझ आ गई? बात नहीं आई कतई वसली जी। की? जी सर। तो अब ये हमजा कतई नहीं है, वसली है, असली नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? इस रा को मोटा पढ़ेंगे। इरजिई रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन। समझ गए ना? अब जी। इसका भी कसरा जो है वो दूसरे कलमा में है, रब्बिरजिऊन। रब्बे अलहदा कलमा है। यार ये शोर क्या मचाते हो? अरे क्या बंद है? बंद कर दिया करें। रब्बिरजिऊन, रब्बे इरजिऊन। रब्बे दूसरा कलमा है, रब, और इरजिऊन दूसरा कलमा है। इन एरो तब तुम, इन एरो तब तुम, मनेरो तब, ऐसे कलिमात हैं बाज। ठीक है ना जी? तो वो रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर दूसरे कलमा में है, यानी जेर उसकी दूसरे कलमा में है, या उसी कलमा में है, उसी यानी उसी वो असली नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? रा को मोटा मोटा पढ़ेंगे। बोले। समझ आ गई ये बात की नहीं आई? ये जी रब्बीर सर जी जी। हम दोबारा समझा दीजिए। जी। रब्बीर जी उन वाली मिसाल दोबारा समझा दीजिए। भाई रब का लफ्ज अलग है, रब्बे इरजिऊन, रब्बे इरजिऊन है असल लफ्ज। जी। तो जी। हम मिला के पढ़े, कैसे पढ़ते हैं? रब्बे रुजिऊन, रब्बे रुजिऊन। और इसका जो बाब है ना, बाब रजा यरजिउ, इसके जितना हमजे आते हैं वो सारे वसली हैं, यानी वो उसको मोटा, रा को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है ना जी? जी। जी। रब्बे रुजिऊन, मन इर्तदा, मन इर्तदा, मन इर्तदा, इन इरतब तुम, इन इरो तब तुम, इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे। वही कुछ पहले पढ़े है कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ा सर जी। भाई जेर असली ना हो, अगर हो तो दूसरे कलमा हो, फिर भी वो असली नहीं है ना, इसकी अपनी तो नहीं है, दूसरे से ले जी। रहा है ना जी। जी। तो इस बस इस रा को मोटा पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? जी। जी। इसमें इबहाम वाली बात तो नहीं है कोई ऐसी जो ना समझ आ रही हो? सबको समझ आ गई ये बात? हाँ जी, आ गई है जी। जी सर अच्छा, जी आ गई है। कितने हालतें हो गई फिर? कितने हालतें पढ़ ली जी हमने? नहीं, यानी साकिन की कितने चार हालतें जी। पढ़ ली? तीन पढ़ ली है। कितने पढ़ चार लिए? पढ़ दी। भाई तीन का के, वो तीन। तो मुतहर्रिक की थी एक। अच्छा हाँ। एक तो जी। मुतहर्रिक की थी हाँ ना। जी, हाँ तीन जी, ये बजे से। ये तीसरी है। जी ठीक है यहाँ। ना? अब चौथी पढ़ने लगे हैं। रा साकिन से पहले, रा साकिन से पहले, ये सब पहले की पहले। बात आ रही है, पहले की। रा साकिन से पहले, रा साकिन से पहले, ठीक है ना? ये सारे ऐसे। रा साकिन से पहले या साकिन हो, रा साकिन से पहले क्या हो? या साकिन। या या साकिन। साकिन हो। वक्फ की हालत में, याद रखना, वक्फ की हालत में उस रा को बारी या मोटी पढ़ते हैं, ये बारीक पढ़ते हैं। अगर रा साकिन से पहले क्या हो? या साकिन हो। या साकिन हो, तो वक्फ की या हालत में क्या साकिन। पढ़ेंगे? उसको बारीक पढ़ेंगे। बारीक बारीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे।
वक्फ की हालत में क्या पढ़ेंगे भाई? बारीक पढ़ेंगे। अगर ला बारीक। साकिन से पहले या साकिन हो तो वक्फ की हालत में बारीक पढ़ेंगे। बारीक बारीक पड़े। पड़ेगी। समझ आ गई ये बात? आगे मिसाल देते हैं हाँ जी। आपको। मसलन खैरुन है, खैरुन, खैरुम मिन अल्फि शहर, है ना कुरान में, खैरुम मिन जी। अल्फि शहर। अब हम वक्फ करते हैं खैर पर, खैर, खैर बारीक पढ़ेंगे अगर वक्फ करेंगे तो। अगर मिला के पढ़ेंगे तो खैरुन, उसकी अपनी हरकत आ जाएगी। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। जी। ضير، ضير طير، इस पर वक्फ करेंगे ضير خير طير طير, तो ये बारीक पढ़ेंगे। इस तरह खबीर, बसीर, बशीर, नदीर, फकीर। समझ आ गई बात? ये सारे के सारे क्या करेंगे हाँ वक्फ की जी। हालत में? क्या पढ़ेंगे? बारीक। बारीक बारीक पढ़ेंगे। पड़ेंगे। आ गई समझ? हाँ जी। जी सर जी। कितने हालतें हो गई? चार। 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 पांचवी ये है, हम पहले कहते थे पहले, रा साकिन से पहले, अब रा साकिन के बाद की बात करेंगे, ठीक है ना जी? रा साकिन के बाद, रा साकिन के बाद। बाद हरूफ मुस्तारिया, यही हरूफ, खुस्सा ज़ाग तनक़ीज़, ये जो 7 हरूफ हैं, समझिए ना? हरूफ यानी हाँ जी। जी। किसके किसके बाद? रा साकिन के रात बाद में भी होगी। अगर ये हरूफ आ जाए, खुस्सा ज़ाग तनक़ीज़, तो फिर रा को मोटा पढ़ेंगे। फिर रा को क्या पढ़ेंगे? मोटा। मोटा मोटा पड़ेंगे। पढ़ेंगे, चाहे उसके, उससे पहले जो है रा साकिन से पहले जेर असरी क्यों ना हो, चाहे उससे पहले जेर असरी जेर असली की दम। क्यों ना हो, फिर भी ये सुराग क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे। जब ये आ जाए, ये हरूफ, खुद सजा तनकीज, 7 हरूफ, समझ आ गई? मसलन जी। लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद, है ना सूरत फजर में, जी। जी। लबिल मिरसाद। देखो ना, रा के, इसको पढ़ना तो चाहिए बारीक क्योंकि रा से पहले जेर है, लेकिन मोटा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं? सब कुर्रा, 10 के 10 कुर्रा जो है ना, ये क्या पढ़ते हैं इसको? ठीक, मोटा। मोटा पढ़ते हैं। कोई भी इसको बारीक नहीं पढ़ता, लेकिन हम पढ़ते हैं बारीक, क्यों? पता नहीं है ना, है? है जी? जी। जी। हम सारे कारी क्या पढ़ते हैं? कारी, कारी है, कारी, बारीक। कारी, कारी तो नहीं है, कारी है ना, जरब लगाने वाला है ना। हम सारे जी। कारी जो है, इसको क्या पढ़ते हैं? बारीक पढ़ते हैं। बारीक। माशाल्लाह, है जी? तो कारी सारे जो है क्या पढ़ते हैं? कारी हजरात, पूरा हजरात क्या पढ़ते हैं? बारीक। मोटा पड़ेंगे। मोटा पढ़ते हैं। हम बारीक पढ़ते हैं। हम बड़े बारीक हम कारी पड़ेंगे। है ना, बारीक उनसे बड़े कारी है ना हम, थे। है, इस वजह से। तो आज से इंशाअल्लाह आप मोटा पढ़ेंगे। समझ आ गई बात ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। सर जी। लबिल मेरो सौद, मेरो सौदा किरतास, एक चंद लफ्ज हैं, चंद हरूफ हैं। फिर कातिन, ये इतना है बस, पूरे कुरान में इतना है, ये पढ़ रहा हूं मैं। मेरो सौदा, कितने इर हैं सर? सौदा, फिर कातिन किरतास, बस इससे अलावा और हरफों के कोई नहीं है, दूसरे हरफों के। समझ आ गई? फिर कातिन, जी। जी। ये क्या पढ़ेंगे? इस रा को मोटा पढ़ेंगे। मोटा। और फिरकिन वाली रा, सूरह शुआरा में फिरकिन वाली रा को दोनों वजूह पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं, मोटा भी पढ़ सकते हैं। समझ गया ना भाई? समय, ये फिर कायदा, ये कठिन वाली। कायदा कुलिया है, किसका कायदा? रा का कायदा पढ़ा दिया आपको लोगों को, मोटा। रा का कायदा पढ़ा दिया, याद रखना इसको, ठीक है ना जी? यानी रा, इंशाल्लाह। रा मुतहर्रिक होगी या साकिन होगी? मुतहर्रिक हो, जबर पेश हो तो मोटी, जेर है तो बारीक। और रा साकिन हो जी। तो 5 हालतें हैं। माकबल, जी। माकबल को देखेंगे, माकबल जबर पेश है तो मोटी, जेर है तो बारीक। अगर माकबल भी साकिन है तो माकबल के माकबल को देखेंगे, अगर उस पर जबर पेश है तो मोटी, जेर है तो बारीक। और रा जी। साकिन से पहले जेर असरी ना हो, फिर रा को मोटा पढ़ेंगे। और अगर रा साकिन से पहले या साकिन हो, वक्फ की हालत में उस रा को बारीक पढ़ेंगे। और रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो उस रा को मोटा पढ़ेंगे। और फिरकिन वाली रा को सही। ये दोनों वजूह पढ़ सकते हैं। यह है कायदा कुलिया। समझ आई बात? जी, जी। इसकी कोई खास वजह है जो फिर कतिन वाली को दोनों तरफ पढ़ सकते हैं? हाँ, बस क्योंकि वो इसके जो बाद भी एक जो मुस्ताली है। कहते हैं अभी, वो उसमें फिरकिन
यानी वो जो मोटा पढ़ते हैं वो कहते हैं आगे मुस्तालिया आ रहा है, तो जी। वो जो बारीक पढ़ते हैं वो उस जेर का वो वो पीछे करते हैं, जेर। हाँ उसको करते हैं, लिहाज करते हैं। माँ बस कबल। दोनों इसमें इख्तलाफ है, बस मुख्तलफ ही है, यानी दोनों वजह से पढ़ सकते हैं, बस ये वजह है। समझ आ गई ये बात? जी। जी उस्ताद जी। अच्छा जी, अब हम इसकी मशक कर लेते हैं, जो आगे हरूफ हैं इसकी मशक नहीं की ना। सौद, अस, इस, उस, ठीक है ना जी, असो, इसो, उसो। देखो ना, सीटी भी बजाएंगे और मोटा भी पढ़ेंगे। समझ आ गई? हाँ जी। क्योंकि इसमें हरूफ मुस्तालिया में से है। और सबुरुन, 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 कलकला भी करेंगे बा में जी। हाँ जी। क्या करेंगे? कलकला करेंगे। अगर वक्फ करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे रा को? रात मोटा पड़ेंगे। रा को मोटा पढ़ेंगे, शाबाश। क्यों? कि रा साकिन है, रा साकिन हो जाएगी ना। जी। उससे पहले भी जी हर्फ जी। साकिन है, तीसरा हर्फ जो है वो जबर है, सबरो, हाँ जी। सबरो। ठीक है ना जी। और अगर मिला के पढ़ेंगे फिर भी मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि वो दो पेश है। समझ आ गई बात? जी। हाँ जी। सबको समझ आ रही है भाई? जी उस्ताद जी। जी। सौमीतुन, सौमीतुन, अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा। सौमीतुन, जी। सौमित, वक्फ करेंगे तो कसरो, कसरो, कसरो। इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे वक्फ की मोटा मोटा। हालत पड़ेगा। में। और कसरुन फिर भी मोटा पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। जी। वाद, अव्वो, अव्वो। देखो जबान कहाँ लग रही, लगाओ मोटा, एकदम मोटा हर्फ, एकदम आवाज मोटी करनी है। अव्वो, लगाओ तो। मैं और पढ़ रहा हूँ, आप वो पढ़े, थोड़ा थोड़ा साथ पढ़ते रहना। अव्वो, और और वो जो। एव्वो, और जो। एव्वो, वो जो। ओव्वो, वो वो जो। अरव्वो, अरव्वो। और जो। हाँ, अराजा, अराजा, और अराजा, अराजा नहीं है। और जो। हाँ जी, अरव्वो, और मरीज़ो, जो। मरीज़ो, मरीज। मरीज़ो। जबा, मरीज। हाँ क्या, क्या है इसका क्या नाम है, मखरज क्या है? जबान की करवट जब ऊपर वाले पांच दाढ़ों की जड़ों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, बहुत। समझ गए बात? हाँ जी। और वो मरीज, मैंने क्या बताया था कि एकदम मोटे आवाज के निकालो, बस अदा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। वज़अ, 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 ठीक है ना। तो जी। अतो, इतो, उतो, हाँ तो। अतो, इतो, उतो, कलकला भी है और मोटा भी है, ठीक है ना जी। हाँ जी। तो तोरिकुन, तोरिकुन, ये तो मोटा है और अलिफ मोटा। तोरिकुन। तो तोरिकुन मोटा करे, अलिफ मोटा हो जाएगा। तोरिकुन, तोरिको। हम्म। राबरी को। हाँ, नहीं ताबरी किधर है? तो मोटा है अच्छा, लेकिन। राबरी को। हाँ, पर राबरी। राबरी को जाएगा। जी जी, जी। तोरिको। तो ये कॉफ जो है ये मोटा है और ये मोटा हर्फ है, तो भी और कॉफ भी। तो आगे अब वक्फ की हालत में कलकला होगा, तोरिको, ठीक है ना जी। कॉफ में कलकला होगा। तुल्लाब, 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 लाम को बारीक पढ़ेंगे। तुल्लाब, तुल्लाब, यानी तो को मोटा पढ़ेंगे, लाम और लिफ को मोटा बारीक पढ़ेंगे, बा को भी। तुल, तुल्लाब। और बा वक्फ की हालत में बा पर कलकला करेंगे। अगर मिला के पढ़ेंगे फिर कलकला नहीं होगा, ठीक है ना जी। बतौला, 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 बतौल, जी। कुछ समझ आ रही है बात? जी वा, हाँ जी। जी।
वा अव एव अज ओव। उज इसका क्या मखरज है? जबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे को लगे तब ये हर्फ अज अदा होता है। अव एव ओव। व हाँ जी। व उज हाँ वाह वन वाह वन वाह व वन अज़ुन व वाह अज़ुन वन। وعظ जुन नहीं वन। وعظ वन। हाँ मोटा भी करना है ना। ظن मोटा भी करना है ना। वाह वन। जी। वाह। وعظ जुन क्यों करते हो? इसमें सीटी तो नहीं है बोले? इन हर्फ मोटे सीटी नहीं, बस तीन हर्फ वही सीटी वाले हैं बस। वाह वन वाह वन। وعظ हाँ वाह وعظ वन वाह وع- वाह वाह وعظ व अज़ وعظ عظيم 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 जी। عظيم عظيم حفيظ حفيظ. حفيظ 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 हाँ غين से اغ رغدا رغدا. رغد غبرة غبرة فرغب. غبرة हाँ را को मोटा पढ़ेंगे ना। فرغب फरगब देखो जी फरगब रा को क्या पढ़ेंगे? रा को मोटा पढ़ेंगे फर पीछे। फरगब फरगब बा पे कलकला होगा। गैन को मोटा पढ़ेंगे। खा से अख इख उख बखीला बखील अखद अखद खुलिक खुलिक। समझ आइए। काफ से अको इको उको हकुन हक हक अलक कमर कमर। समझ आइए बात भाई। जी तीन जी हरूफ तीन हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं वो जो मैंने बताया आपको। और वो ये है अलिफ लाम रा। उनको शिबे मुस्तारिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी मुस्तारिया के मुशाबे हैं। शिबे मुस्तारिया कहते हैं। समझ गए ना? होमवर्क हरूफ मुस्तालिया याद करें और उनकी मशक करें। ये आप लोगों ने याद भी करना है हरूफ मुस्तालिया और ये और उनकी मशक भी करनी है। और ठीक है ना? सूरत फातिहा भी याद करना है। और सूरत नास आपको पढ़ के सुनाया है। इस तरह आप भी याद करें इसको। आसान है। गुन्ने करने हैं उसमें। नून शद वाला मीम शद वाले में हमेशा गुन्ना होता है। इसमें ज्यादातर नून पर शद है। बस एक जगह पे वो मिन शर्रिल वसवासिल वहां पे भी गुन्ना कर देना है। अक्सर गुन्ने यहाँ पे है। समझ आइए बात।